سپہ سالار جنرل سید عاصم منیر نے مجھے سیکیور فون پہ مجھے بتایا کہ وزیر اعظم صاحب ہندوستان نے اپنے بیلسٹک میزائل ابھی لانچ کیے ہیں اور انہوں نے مجھے کہا کہ وزیر اعظم مجھے اب اجازت دیں کہ ہم دشمن کے منہ پر ایسا تھپڑ رسید کریں گے کہ وہ عمر بھر اس کو یاد رکھے گا. پاکستان has always preferred and has always argued. جنگ جیت لی ہے لیکن ہم امن چاہتے ہیں. ہم نے دشمن کو سبق سکھا دیا. سبق یہی ہے ہم ٹیبل پر بیٹھیں, بات چیت کریں, مسائل حل کریں. ہم نے 3 جنگیں لڑی ہیں, ان جنگوں کا کوئی فائدہ نہیں ہوا. مستقل امن کے لیے کشمیر کے مسئلے کا مستقل حل ہونا چاہیے. ہمیں پرامن ہمسایوں کی طرح مذاکرات کے ٹیبل پر آنا چاہیے. وزیر اعظم کی ایک بار پھر بھارت کو مذاکرات کی دعوت. ہم نے دشمن کو عالمی تحقیقات کی پیشکش کی. دشمن نے ہماری تحقیقات کی پیشکش کو ٹھکرا کر حد پار کر دی. دشمن نے غرور کے نشے میں پاکستان پر حملہ کر دیا. پاکستان نے بھارتی جارحیت کے جواب میں کارروائی کی. دشمن جو خود کو خطے کا تھانے دار سمجھتا تھا, اس کے 6 جہاز مار گرائے. دشمن کے رافیل, مگ اور ڈرونز گرائے گئے. ہمارے شاہینوں نے دشمن کے رافیل کو فیل کر دیا. فتح سیریز کے میزائلوں نے دشمن کو کہاں کہاں نشانہ بنایا, دنیا نے دیکھا. ہماری جوابی کارروائی پر دشمن نے چند گھنٹوں بعد ہی سیز فائر کی درخواست کر دی. اللہ تعالیٰ نے چند گھنٹوں میں ہی ہمیں سرخرو کیا. پاک فوج نے دشمن کو ایسا ڈراؤنا خواب دکھایا کہ وہ کبھی نہیں بھولے گا. افواج پاکستان نے دشمن کا غرور خاک میں ملا دیا. پاک فضائیہ نے مارکہ حق کے دوران نئی تاریخ رقم کر دی. کشیدگی میں کمی کے لیے صدر ٹرمپ کے اہم کردار کا معترف ہوں. وزیر اعظم شہباز شریف کا یوم تشکر کی مرکزی تقریب سے خطاب. وطن عزیز پر جانیں نچھاور کرنے والے شہداء کو سلام. پوری قوم نے متحد ہو کر دشمن کا مقابلہ کیا. ہمارے میڈیا کا کردار ذمہ دارانہ تھا. میڈیا ہمارا فخر ہے. میڈیا کا کردار پورے معاملے میں شاندار رہا. ہمارے میڈیا نے جو جواب بھارتی میڈیا کو دیا وہ یادگار ہے. کیسے ہمارے میڈیا نے جواب دیا, ہمیں فخر ہے. ہم نے کچھ نہیں چھپایا, سب حقیقت بتائی. چیف آف آرمی سٹاف جنرل سید عاصم منیر کی صحافیوں سے غیر رسمی گفتگو. مارکہ حق اور آپریشن بنیان و مرسوس میں تاریخ فتح پر یوم تشکر. پاکستان مونومنٹ پر مرکزی تقریب. وزیر اعظم شہباز شریف کی بطور مہمان خصوصی شرکت. چیئرمین جوائنٹ چیف آف اسٹاف کمیٹی, آرمی چیف, ایئر چیف اور نیول چیف بھی شریک ہوئے. وفاقی وزراء اسحاق ڈار, خواجہ عاصم, محسن نقوی, عطا طاہر اور دیگر کابینہ ارکان کی شرکت. غیر ملکی سفارتکاروں اور دیگر سول و عسکری حکام کی بھی شرکت. مسلح افواج کے چاق چوبند دستے نے وزیر اعظم کو صدر سلام پیش کیا. شہدائے وطن کے لیے خصوصی دعا کرائی گئی. تقریب میں شاہد افریدی, شعیب اختر, شعیب ملک, عمر گل کی بھی شرکت. یوم تشکر کی تقریب میں پاک فضائیہ کے شاہینوں کا خصوصی فلائی پاس. جنگی طیاروں کی گنگرج سے دشمن پر ہیبت طارق. شاہینوں کے فلائی پاس کے ذریعے قوم کے عزم اور بلبلے کو سلام. ساحر علی بگا اور ہادیہ ہاشمی نے ملی نغمے گا کر حاضرین کا لہو گرمایا. گلوکارہ شبنم مجید نے بھی خوبصورت آواز میں وطن سے محبت کا اظہار کیا. سائرہ نسیم کی بھی شاندار پرفارمنس. مارکہ حق میں شاندار فتح پر ملک بھر میں یوم تشکر. پاک فوج اور پاکستانی عوام کو زبردست الفاظ میں خراج تحسین. وفاقی دارالحکومت میں 31 اور صوبائی دارالحکومتوں میں 21 توپوں کی سلامی. جوانوں کے نعرہ تکبیر کے فلک شگاف نعرے. وزیر اعظم ہاؤس میں پرچم کشائی کی تقریب کا انعقاد. اللہ کا شکر گزار ہوں نازک گھڑی میں فتح سے نوازا. یہ صرف پاکستان کے افواج کی نہیں بلکہ پوری قوم کی کامیابی ہے. دشمن کی جارحیت کے خلاف قوم بنیاد مرصوص کی مانند کھڑی رہی. مسلح افواج پر فخر ہے. صدر مملکت کا پیغام. صدر مملکت آصف علی زرداری کی اسکواڈرن لیڈر عثمان یوسف شہید کے گھر آمد. عثمان یوسف شہید کے لواحقین سے اظہار تعزیت. شہید کی وطن کے لیے خدمات اور دفاع وطن میں جان کا نذرانہ پیش کرنے پر قوم کی جانب سے خراج عقیدت. ہمیں اپنے بہادر جوانوں کی قربانیوں پر فخر ہے. وزیر اعظم شہباز شریف اور آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر کی بھی اسکواڈرن لیڈر عثمان یوسف شہید کے گھر آمد. اہل خانہ سے ملاقات. شہید کے درجات کی بلندی کے لیے دعا کی. وزیر اعظم شہباز شریف نے مارکہ حق کے دوران اسکواڈرن لیڈر عثمان یوسف کے عزم و فرض شناسی کو سراہا.
वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का CMH रावलपिंडी का दौरा। ऑपरेशन बुनियाद मरसूस में ज़ख्मी जवानों और शहरियों की खैरियत दरियाफ्त की। ज़ख्मी जवानों की बेमिसाल बहादुरी, आज़म और फर्शनासी को सराहा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि जिस तरह फ़ौज पाकिस्तान और पूरी कौम ने जंग लड़ी, उसकी मिसाल कहीं नहीं मिलती। अवाम की साबित कदमी मुल्क की अस्करी तारीख का फैसला कुन बाब बन चुकी है। बलोचिस्तान के इलाके खुजदार नाल में लेवीज चेक पोस्ट पर नामालूम मुसल्लह अफराद की फायरिंग, हमले में 4 लेवीज एहलकार शहीद। एहलकारों में मकबूल, खुदाबख्श, एजाज और मोहम्मद अली शामिल। सिक्योरिटी फोर्सेस की भारी नफरी मौके पर पहुंच गई। इलाके को घेरे में लेकर कार्रवाई का आगाज कर दिया गया। शहीद एहलकारों की लाशें अस्पताल मुंतकिल। यौम तशक्कुर पर चारों वज़राए आला की खुसूसी तकरीबात। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ की वज़रा के हमरा परचम कुशाई, शोधा को खराज तहसीन पेश। अपने खिताब में मरियम नवाज़ ने कहा कि कौम को फतह मुबारक हो। पाक फ़िज़ाइया के शाहीनों ने दुश्मन का गरूर खाक में मिला दिया। अमन के दाई हैं मगर जारियत का मुतौर जवाब देंगे। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने सिंध सेक्रेटेरिएट में परचम कशाई के ऑपरेशन बुनियाद मरसूस में पाक फ़ौज की शानदार कामयाबी पर पेशावर में यादगार शोधा पर खुसूसी तकरीब। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर, वज़रा सिविल व अस्करी हुक्काम की शिरकत। अली अमीन गंडापुर की फ़ौजी अफसरान के हमरा शोधा के लवाहिकीन से भी मुलाकात। वज़ीर आला बलोचिस्तान के शोधा के अहलखाना से मुलाकात। कमांडर 12 कोर लेफ्टिनेंट जनरल राहत नसीम अहमद भी हमरा। लेफ्टिनेंट सफ़ीउल्लाह शहीद और मेजर अहमद रज़ा शहीद के अहलखाना से ताज़ियत का इजहार। बहादुर सपूतों की बदौलत वतन महफूज हाथों में है। मादरे वतन के लिए शहीदों की कुर्बानियाँ हरगिज़ रायगा नहीं जाएंगी। वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुख्ती की गुफ्तगू। बुज़दिल दुश्मन के खिलाफ यादगार फतह। यौम तशक्कुर पर तकरीबात। मज़ार इकबाल पर पुरवक़ार तकरीब। वरना पंजाब की मज़ार इकबाल पर हाज़री। फूला के फातह खानी की कोर कमांडर लाहौर लेफ्टिनेंट जनरल फ़याज़ हुसैन शाह की भी मज़ार इकबाल पर हाज़री। फूल रखे। गवर्नर सिंह कैबिनेट डिसोरी की मज़ार कायद पर हाज़री। फूलों की चादर चढ़ाई फातह खानी की। कोर कमांडर कराची लेफ्टिनेंट जनरल अवैस दस्तगीर की भी मज़ार कायद पर हाज़री। कैप्टन मोहम्मद सरवर शहीद और मेजर राजा अजीज़ भट्टी शहीद निशान हैदर के मज़ार पर फूल रखने की पुरवक़ार तकरीब। जेलम में मेजर मोहम्मद अकरम और सबाबी में कैप्टन कर्नल शेर खान शहीद निशान हैदर के मज़ार पर भी तकरीब का इनेकाद किया गया। पायलट ऑफिसर राशिद मिनहाज शहीद निशान हैदर के मज़ार पर खुसूसी तकरीब। एयर वाइस मार्शल आमिर शहजाद ने फूलों की चादर चढ़ाई और गज़र में लालिक जान शहीद निशान हैदर के मज़ार पर पुरवक़ार तकरीब। शहीद को सलामी दी गई, फूल चढ़ाए, दुआ की गई। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा की पेशावर में यादगार शोहदा पर हाज़री। फैसल करीम कुंडी ने फूलों की चादर चढ़ाई और फातह खानी की। पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद। पूरी कौम यकजुबान। यौम तशक्कुर पर मुल्क भर में तकरीबात, मुजाहरे और रैलियाँ। पाक फ़ौज से भरपूर यकजहती का इजहार। मुजफ्फराबाद में ऑपरेशन बुनियाद मरसूस की फतह पर यौम तशक्कुर रैली। अवाम का फ़ौज पाकिस्तान से बालहाना अक़ीदत का इजहार। नीलमज़ाद कश्मीर में 8 मुकाम पर परचम कशाई की शानदार तकरीब। पुलिस के चाक चौबंद दस्ते ने सलामी पेश की। गिलगित बल्तिस्तान में चिनार बाग में मरकजी तकरीब। वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान हाजी गुलबर्ग खान ने यादगार शोधा पर फूल चढ़ाए। सबाबी गुजरात, सियालकोट, जेहलम, चकवाल, करक में तकरीबात। बहावलपुर, बहावलनगर, ओकाड़ा, ननकाना साहिब और लड़काना और नवाब शाह में रैलियाँ। पाक फ़ौज जिंदाबाद के नारे। मेरे वतन ये अक़ीदतें और प्यार तुझ पर निसार कर दूँ। स्कर्दू के तलबा का फ़ौज पाकिस्तान को शानदार खिराज तहसीन। तलबा ने नग़मों के ज़रिए वतन से मोहब्बत का इजहार किया। मुल्क के दिफा के लिए पाक फ़ौज की शान बशाना खड़े रहने का अज़म। स्कूलों, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़ में मार्का हक़ को यौम तशक्कुर की खुसूसी तकरीबात का इनेकाद। यौम तशक्कुर पर सिख बरादरी के ज़रिए तमाम गुरुद्वारा जन्म स्थान में रैली। सिख बरादरी की बड़ी तादाद शरीक। हिंदू और मसीही रहनुमाओं की रैली में शिरकत। मार्का हक़ में शानदार कामयाबी। शहर शहर, नगर नगर तकरीबात। शिगर में पुरवक़ार तकरीबात। शहरी जज्बा हुब्बुल वतनी से सरचार। पाक फ़ौज के चाक चौबंद दस्ते की सलामी। शेखुपुरा में रैली। फ़ौज पाकिस्तान के हक़ में नारेबाजी। सखर में यौम तशक्कुर की तकरीबात। पाक अफ़वाज को खिराज तहसीन पेश किया गया। चिनौट में यौम तशक्कुर पर इंतज़ामिया की रैली। शुरका के पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे। कराची में DIG
ट्रैफिक की सरबराही में रही अफवाज पाकिस्तान से भरपूर यकजहती का इजहार। वज़ीर-ए-आज़म से बरतानवी वज़ीर ख़ारजा डेविड लेमी की मुलाकात जंगबंदी मफाहमत को बरकरार रखने के लिए पाकिस्तान के पुख्ता अज़्म का अदा। पाकिस्तान ने भारत के बेबुनियाद इल्ज़ामात और बिला इस्तेहाल जारियत के सामने सब्र और तहम्मुल का मुज़ाहरा किया। अपने दिफा के हक़ के इस्तेमाल में पाकिस्तान का रद्द-ए-अमल मुतनासिब अहदाफ पर मबनी था। हर कीमत पर अपनी खुद मुख्तारी और इलाक़ाई सालमियत का दिफा करेंगे। पाकिस्तान जनूबी एशिया में अमन का ख्वाहिशमंद है। वज़ीर-ए-आज़म का पाकिस्तान और बरतानिया ताल्लुकात मज़बूत रफ्तार पर इत्मीनान का इज़हार। तमाम शोबों में दो तरफ़ा ताल्लुकात और ताउन को बढ़ाने की ख्वाहिश का इज़हार। बरतानवी वज़ीर ख़ारजा की जंगबंदी मफाहमत पर वज़ीर-ए-आज़म को मुबारकबाद। बरतानिया ख़ित्ते में अमन और इस्तेहकाम के फ़रोग़ के लिए तामीरी किरदार अदा करता रहेगा। डेविड लेमी। पाक भारत कशीदगी में कमी के लिए बरतानिया सरगर्म। बरतानिया सेक्रेटेरिएट ख़ारजात डेविड लेमी का पाकिस्तान का दौरा। वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार की डेविड लेमी से मुलाकात। पाक भारत कशीदगी और खित्ते की सूरत-ए-हाल पर बातचीत। मुलाकात में सीज़फायर समेत मुख्तलिफ उमूर पर तबादला ख्याल। इसहाक़ डार ने भारत के आलमी क़वानीन और अक़वाम मुत्तहिदा चार्टर की खिलाफवर्जी बारे आगाह किया। पाकिस्तान ने अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर के तहत अपना जवाबी हक़ इस्तेमाल किया। इसहाक़ डार ने पाक भारत कशीदगी में कमी के लिए बरतानवी काबिशों को सराहा। अफ्रीकन का खित्ते में अमन के लिए डायलॉग की अहमियत पर जोर। बरतानवी वज़ीर ख़ारजा की PP चेयरमैन बिलावल भुट्टो से मुलाकात। पाक भारत हालिया कशीदगी समेत दो तरफ़ा तिजारती, समाजी, सक़ाफ़ती ताल्लुकात पर गुफ्तगू। पाकिस्तान और भारत की क़यादत ने जंगबंदी से मुतालिक मुतासिर कुन किरदार अदा किया। जंगबंदी बरकरार रखने के लिए इंटरनेशनल पार्टनर्स के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। पहलगाम में दहशतगर्द हमला खौफनाक था। बरतानिया हर किस्म की दहशतगर्दी की मजम्मत करता है। पाकिस्तान भी दहशतगर्दी का शिकार रहा। हमें इस बात को यकीनी बनाना है इंतहा पसंदी को फ़रोग़ न मिले। पाक भारत कशीदगी का बराह रास्त असर बरतानिया में आया। पाकिस्तानी कम्यूनिटी के बहुत ज़्यादा तहफ़्फ़ुज़ात हैं। पाकिस्तान हाई कमीशन को 2000 से ज़ायद कॉल्स मौसूल हुई थी। 4 साल में पाकिस्तान आने वाला पहला वज़ीर ख़ारजा हूँ। पाकिस्तान के साथ बाहमी ताल्लुकात, सक़ाफ़त, तिजारत के फ़रोग़ पर बात करूँगा। बरतानवी वज़ीर ख़ारजा डेविड लेमी का बयान। यौम तशक्कुर की मुनासबत से लिबर्टी चौक लाहौर में तकरीब का इनेकाद। सीनियर वज़ीर पंजाब मरियम औरंगज़ेब, सूबाई वज़राए, मुआवन खुसूसी की शिरकत। दुश्मन को लगता था पाकिस्तान को दबा सकता है। बुनियान मरसूस में अल्लाह अकबर का नारा लगाकर फतह अपने नाम की। बुनियान मरसूस में जो मार्का हुआ, मोदी अब जंग के बारे में सोचेगा भी नहीं। पहलगाम के बाद नरेंद्र मोदी ने जंग मुसल्लत की। फ़ौज पाकिस्तान ने दुश्मन को मुँह तोड़ जवाब दिया। मरियम औरंगज़ेब का तकरीब से खिताब। लाहौर में यादगार शोधा में पुरवकार तकरीब।